ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 7 ਸਤੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PPSC, SSC, CGL, CHSL, ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। WhatsApp, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਰਡੇ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਊਸ਼ਾ ਪਾਧੇ। ਊਸ਼ਾ ਪਾਧੇ ਫਸਟ ਵੂਮੈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣੇ ਨੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ। ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫਸਟ ਵੂਮੈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਊਸ਼ਾ ਪਾਧੇ। VK ਯਾਦਵ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ CEO ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ? ਵਿਵੇਕ ਦਿਬਰੋਏ ਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ CEO ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ CEO ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ VK ਯਾਦਵ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਗੇਮਸ ਲਾਈਕ ਪੋਕਰ ਔਰ ਰਮੀ ਵਰਗੀ ਔਨਲਾਈਨ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਨ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਆਫ ਕੈਲੰਡਰਸ, ਡਾਇਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਫੈਸਟੀਵਲ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਕਾਰਡਸ ਫॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टू मेक दैम यूज डिजिटल मीनस। कि पॉइंट है कि इन्हों डिजिटल बनाने के लिए डिपार्टमेंट्स नू, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स नू डिजिटल मीनस के उत्ते यूज़ करने के लिए कैलेंडर, डायरीज और फैसटिवल ग्रीटिंग कार्ड्स की प्रिंटिंग बैन की है। किन्हां द्वारा? फाइनैंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन द्वारा। नैक्सट है पोप फ्रांसिस द्वारा एक बुक लिखी गई। पोप फ्रांसिस द्वारा बुक लिखी गई लेट अस ड्रीम अ पाथ टू बैटर फ्यूचर। लेट अस ड्रीम अ पाथ टू बैटर फ्यूचर। इस बुक नू किन्हां द्वारा लिखा गया है? पोप फ्रांसिस द्वारा। नैक्सट है जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जल शक्ति मिनिस्टर ने। इन्हां द्वारा वाटर हीरोज़ शेयर योर स्टोरीज नाम की इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, कॉन्टेस्ट लॉन्च किया गया ताकि लोगों तक वाटर कंजरवेशन का मैसेज पहुँचाया जा सके। नैक्सट है गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर राजस्थान तो लोक सभा MP ने। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा एक रैंकिंग नू टॉप किया गया। द वर्ल्ड यूनीवर्सिटी रैंकिंग रिलीज़ की गई 2021 के लिए। टॉप किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड द्वारा। सैकेंड प्लेस ते रही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और थर्ड प्लेस ते हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है जी। अगर आप गल करिए एशिया की, फ्रॉम एशिया सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो कि चाइना के विच है, इसने टॉप किया है। अगर गल करिए इंडिया की, तो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के विच रहा IISc बेंगलुरु। इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के विच सैकेंड नंबर पर सीगा IIT रोपड़। टॉप वाला याद रखना ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेगा, IISc बेंगलोर। नेक्स्ट है दिल्ली हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट डेथ ड्यू टू रोड एक्सीडेंट इन 2019 अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डाटा। NCRB नैशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB ने की करा? रोड एक्सीडेंट्स का एक डाटा रिलीज़ किया 2019 का कि 2019 दे विच किन्ने रोड एक्सीडेंट्स होए सीगे। सब तो ज़्यादा रोड एक्सीडेंट कित्थे होए ने? दिल्ली दे विच।
नेक्स्ट है कैबिनेट। कैबिनेट अप्रूव्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020। कैबिनेट द्वारा की अप्रूव किया गया कि एक बिल पास किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर दा ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020, जिस दे अंडर 5 लैंग्वेजेस होणगियां, उर्दू, कश्मीरी, हिंदी, डोगरी और इंग्लिश। उर्दू, कश्मीरी, हिंदी, डोगरी और इंग्लिश, ये 5 लैंग्वेजेस इस बिल के अंडर इंक्लूड की जाएंगी। नैक्सट है एस कृष्णन। एस कृष्णन नूं अपॉइंट किया गया MD एंड CEO ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक के MD एंड CEO कौन अपॉइंट किए गए ने? एस कृष्णन। पंजाब एंड सिंध बैंक का हैडकुआटर कित्थे है? न्यू दिल्ली दे विच। मुराली रामाकृष्णन। मुराली रामाकृष्णन इन्हां नूं अपॉइंट किया गया MD एंड CEO ऑफ साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक के MD CEO कौन अपॉइंट किए गए ने? मुराली कृष्णन। इसका हैडकुआटर कित्थे है? थ्रिसूर केरला दे विच। थ्रिसूर केरला दे विच। सिमिलर तरीके दे नाल HDFC बैंक बारे याद रखना है। HDFC बैंक के MD एंड CEO का नाम बिल्कुल रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं, शशिधर जगदीशन। ठीक है जी, नाम इंपॉर्टेंट बनेगा, याद रखना है। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु द्वारा इंडिया की फर्स्ट एवर वूमेन एंबूलेंस ड्राइवर अपॉइंट किए गए हैं M वीरा लक्ष्मी। इंडिया की फर्स्ट वूमेन एंबूलेंस ड्राइवर, फर्स्ट वूमेन एंबूलेंस ड्राइवर कौन अपॉइंट किए गए हैं? M वीरा लक्ष्मी। कित्थे अपॉइंट किए गए हैं? तमिलनाडु दे विच। नैक्सट है इंडियाज चैस ग्रैंड मास्टर। इंडिया के चैस ग्रैंड मास्टर P इनयन वॉन 48th एनुअल वर्ल्ड ओपन चैस टूरनामेंट ऑनलाइन यूजली हेल्ड इन फिलाडेल्फिया USA। एनुअल वर्ल्ड ओपन चैस टूरनामेंट, वर्ल्ड ओपन चैस टूरनामेंट हर साल फिलाडेल्फिया USA दे विच हेल्ड किया जाता है। ठीक है जी, इस साल 48वां एडिशन हेल्ड किया गया। 48वां एडिशन ऑनलाइन हेल्ड किया गया ड्यू टू COVID-19 और जितया किसने? P इनयन ने। P इनयन द्वारा इसनूं जितया गया। नैक्सट है पैंग लैबसोल फैसटिवल। पैंग लैबसोल फैसटिवल ये ऑर्गेनाइज किया गया सिक्किम दे विच टू पे ट्रिब्यूट टू माउंट कंचनजंगा। क्वेश्चन 2 तरीके ना पूछा जाएगा कि पैंग लैबसोल फैसटिवल किहड़ी स्टेट दे विच ऑर्गेनाइज किया जाता है? सिक्किम दे विच। पैन लैबसोल फैसटिवल जो कि सिक्किम दे विच ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये किहड़ी माउंटेन नूं ट्रिब्यूट करन दे लई किया जाता है? ये किया जाता है माउंट कंचनजंगा। माउंट कंचनजंगा। नेक्स्ट है गूगल। गूगल हैज़ पार्टनर्ड विद बांग्लादेश वाटर डेवलपमेंट बोर्ड। गूगल ने बांग्लादेश के वाटर डेवलपमेंट बोर्ड के नाल पार्टनरशिप की। किस दे लई? टू ब्रिंग द फ्लड वार्निंग सर्विसिज टू द कंट्री। बांग्लादेश नूं फ्लड वार्निंग सर्विसिज, बांग्लादेश दे विच अगर फ्लड आंदा है तो उसनूं वार्न करन दे लई, पहले वार्न करन दे लई फ्लड वार्निंग सर्विसिज इंस्टॉल करन दे लई गूगल ने पार्टनरशिप की है बांग्लादेश वाटर डेवलपमेंट बोर्ड दे। नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन प्रोजेक्ट। नॉर्थ स्ट्रीम 2 ये पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। क्वेश्चन पूछा जाएगा किहड़ी 2 कंट्रीज़ दे विच है? किहड़ी 2 कंट्रीज़? रशिया और जर्मनी दे विच। दूसरा क्वेश्चन है किहड़े सी दे विचों पास करदा पाइपलाइन प्रोजेक्ट? ये पास करदा बैल्टिक सी दे विचों। फ्रॉम नॉर्थ बे इन रशिया टू जर्मन सिटी ऑफ लुबमिन। जर्मनी दी लुबमिन सिटी तक यह पास करदा। ठीक है जी। इस तो इलावा नैक्सट चलते हैं स्टैटिक पोर्शन के वाल। स्टैटिक पोर्शन के आप डिस्कस कर रहे हैं थर्मल पावर प्लांट्स। सब तो पहले ओरबा थर्मल पावर प्लांट उत्तर प्रदेश, हरदूगंज थर्मल पावर प्लांट उत्तर प्रदेश, रिहांड थर्मल पावर प्लांट उत्तर प्रदेश। ये तुसीं पहले सुनिया होगा, काफ़ी इंपोर्टेंट है। सिंगरैली थर्मल पावर प्लांट उत्तर प्रदेश, परीचा थर्मल पावर प्लांट उत्तर प्रदेश, न्यूवेली थर्मल पावर प्लांट तमिलनाडु। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूवेली थर्मल पावर प्लांट तमिलनाडु, रिहांड थर्मल पावर प्लांट उत्तर प्रदेश, हरदुआगंज थर्मल पावर प्लांट यूपी, ओरबा थर्मल पावर प्लांट यूपी, सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट यूपी और परीचा थर्मल पावर प्लांट यूपी। 5 थर्मल पावर प्लांट्स अपने यूपी से डिस्कस किए हैं और लास्ट वाला यह तमिलनाडु के विच है, याद रखना। नैक्सट चलते हैं अज के फर्स्ट क्वेश्चन के वाल। फर्स्ट न्यूज़ है विच डे इज़ ऑबजर्वड एज इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। काफ़ी न्यूज़ ने
कल दी न्यूज़ ने, परसों की न्यूज़ ने, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ ने डिस्कस करांगे। सब तो पहले इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 5 सैप्टैंबर नूं इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ऑबजर्व किया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कदों ऑबजर्व किया गया? 5 सैप्टैंबर। ये हर साल ऑबजर्व किया जाता है। अगर गल करिए 2012 तो इसनूं ऑबजर्व करना शुरू किया गया सी। ये क्यों ऑबजर्व किया जाता है? ये डेथ एनीवर्सरी है, डेथ एनीवर्सरी है मदर टेरेसा दी। मदर टेरेसा दी डेथ एनीवर्सरी ऑबजर्व की जाती है 5 सैप्टैंबर को। इन्हां दे रिलेटेड एक दिन एक इंपोर्टेंट चीज़ याद रखनी है, 1979 दे विच इन्हां नूं नोबल पीस प्राइज़ दिता गया सी। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करिए 5 सैप्टैंबर नूं ही टीचर्स डे भी ऑबजर्व किया जाता है। हालांकि मैंने जानबूझ के टीचर्स डे वाले दिन यह दिन डिस्कस नहीं किया सी। इस दे रिलेटेड एक इंपोर्टेंट चीज़ सी वो मैंने डिस्कस करनी सी कि टीचर्स डे क्यों ऑबजर्व किया जाता है, क्योंकि यह बर्थ एनीवर्सरी है इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेजिडेंट सैकेंड प्रेजिडेंट, इंडिया के दूजे प्रेजिडेंट और पहले वाइस प्रेजिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है जी। इस तो इलावा इन्होंने द्वारा एक बुक लिखी गई सी, इंपोर्टेंट बनती है, द फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। द फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जी की फिलोसफी, रविंद्रनाथ टैगोर जी की फिलोसफी इन्होंने लिखी गई सी 1917 दे विच। किन्ना द्वारा लिखी गई थी? वाइस प्रेजिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा। इस तो इलावा अगर गल करिए वर्ल्ड टीचर्स डे की, नैशनल टीचर्स डे आप डिस्कस किया, इंडिया वालों टीचर्स डे ऑबजर्व किया जाता है 5 सैप्टैंबर नूं और वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्तूबर नूं ऑबजर्व किया जाता है। ये याद रखना है, 5 अक्तूबर नूं वर्ल्ड टीचर डे ऑबजर्व किया जाता है। नैक्सट है, हु इज़ अपॉइंटेड एज ब्रांड एंबेसडर ऑफ बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इस कंपनी के ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किए गए ने अंशुमन खुराना। अंशुमन खुराना नूं ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया। अंशुमन खुराना नूं किस दे ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया? बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दे। इस तो इलावा अगर आप गल करिए बाकी ऑप्शनस की, तो बाकी ऑप्शनस दे विच कियारा अडवाणी, कल ही आप डिस्कस करके हटे सी मिंत्रा के ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किए गए सी कियारा अडवाणी नूं। बाकी ऑप्शनस के रिलेटेड कुछ न्यूज़ ने वो डिस्कस करते हैं। सब तो पहले ईशा अंबानी और आकाश अंबानी, ये बेसिकली मुकेश अंबानी जी के बेटे और बेटी ने, ईशा अंबानी और आकाश अंबानी। इन्हों फॉर्चून मैगजीन के 40 अंडर 40 लिस्ट के विच ऐड किया गया एज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल यंग लीडर्स ऑफ द ईयर अंडर टेक्नोलॉजी सैक्शन। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल यंग लीडर्स ऑफ द ईयर अंडर टेक्नोलॉजी सेक्शन, ईशा अंबानी और आकाश अंबानी। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी। इन्हों अपॉइंट किया गया एज ए सैक्रटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। मोस्पी मिनिस्ट्री कहा जाता है इसनूं शॉर्ट फॉर्म दे विच। इसके सैक्रटरी अपॉइंट किए गए हैं। मिनिस्ट्री किन्ना लवे है? मोस्पी मिनिस्ट्री है राव इंद्रजीत सिंह दे लवे मिनिस्ट्री है। अच्छा, इस मिनिस्ट्री का ही एक पार्ट है NSO, नैशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिहड़ा कि डिसाइड करता है GDP, जिहड़ा कि दसदा है कि इस क्वार्टर दे विच कितनी GDP रही है। इस अगर आप गल करिए फर्स्ट क्वार्टर की GDP आप रिसेंटली डिस्कस की सी, बिल्कुल रिसेंटली आई है 23.9%, माइनस 23.9% इंडिया की GDP रही सी अप्रैल टू जून क्वार्टर की। ये याद रखना है। तो हैड अपॉइंट किए गए हैं या कह सकते हैं सैक्रटरी अपॉइंट किए गए हैं मोस्पी मिनिस्ट्री के छत्रपति शिवाजी। नेक्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा सेक्रेटरीट नोटिफाइड दैट देयर विल बी नो क्वेश्चन आवर ड्यूरिंग विच सैशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के किहड़े सैशन के दौरान कोई भी क्वेश्चन आवर नहीं होएगा। अगर आप गल करिए इस टाइम अनाउंसमेंट की गई है तो किहड़ा सैशन चल रहा है इस टाइम? मॉनसून सैशन। तो अपना आंसर होएगा सैकेंड ऑप्शन। 3 तरीके के सैशन होंगे ने जिन्होंने आप याद करते हैं BMW के नाल। बजट सैशन सब तो पहले, उस तो बाद मॉनसून सैशन और उस तो बाद विंटर सैशन। ठीक है जी। बजट सैशन सब तो लंबा सैशन होंगे
ਲੋਕ ਸਭਾ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ 11 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ, ਜੋ ਕਿ 11 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਅ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਨਸਰ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਅਰਡ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਅਨਸਟੇਅਰਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਔਰ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਸਟੇਅਰਡ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਅਨਸਟੇਅਰਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਔਰ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਤਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਡ ਅ ਹਰਬਲ ਬੇਸਿਸ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟਿੰਗ रूम फ्रैशनर हेल्दी एयर टू टैकल कोविड-19। की बनाया गया कि रूम फ्रैशनर बनाया गया। पहले सैनिटाइजर्स बनाए जा रहे सी, उस तो बाद सैनिटाइजिंग डिवाइस बनाए गए, तो हुण बनाया गया कि रूम फ्रैशनर। रूम फ्रैशनर है हेल्दी एयर, जिसका नाम रखा गया हेल्दी एयर। इस रूम फ्रैशनर नूं किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया? इसनूं बनाया गया डाइट द्वारा, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टैक्नोलॉजी। इस द्वारा डाइट इसका हैडकुआटर है पुणे दे विच, पुणे दे विच हैडकुआटर है, और इस द्वारा हेल्दी एयर नाम का रूम फ्रैशनर बनाया गया। अगर आप गल करिए DRDO की, तो DRDO 1 जनवरी 1958 ਨੂੰ बनाया गया सी। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। जी सतीश रेड्डी इस दे चेयरमैन ने। जी सतीश रेड्डी ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਦੀ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ DRDO ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ ਸਤੀਸ਼ ਰੈਡੀ ਨੂੰ। ਜੀ ਸਤੀਸ਼ ਰੈਡੀ ਨੂੰ USA ਦੁਆਰਾ ਮਿਸਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। इसरो ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 15 ਅਗਸਤ 1969 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਔਰ इसरो की गल करिए, इसरो के चेयरमैन ने के सीवान ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੌਨ ਕਰਮਨ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੌਨ ਕਰਮਨ ਅਵਾਰਡ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? इसरो ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ के सीवान ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ NTPC ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕਰਿਆ ਗਿਆ? ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ चाणक्य नैशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020। NTPC ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसीएशन की चाणक्य नैशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 जित्तियां ने। अगर आप गल करिए NTPC की वैल्यूर तमिलनाडु की टीम ने इस चैंपीयनशिप में जितया है। NTPC की वैल्यूर तमिलनाडु की टीम ने इस चैंपीयनशिप में जितया। IIT दिल्ली की अगर आप गल करते हैं तो IIT दिल्ली द्वारा एक कैबिनेट लॉन्च की गई चक्रदीप कौर। ये की करेगी? ओजोन गैस का यूज़ करके N95 मास्क नू डीकंटैमीनेट करेगी। अगर गल करिए तो N95 मास्क कोविड-19 तो बचन के लिए जो मास्क होंगे ने उन्होंने यूज़ किया जाता है। तो यह उसनू साफ करने के लिए एक कैबिनेट बनाएगी चक्रदीप कौर, एक अलमारी के तरीके नाल बनाएगी जिहड़ी कि ओजोन गैस का यूज़ करेगी और उन्होंने डीकंटैमीनेट करन दे। नेक्स्ट है हु हैज़ नेम्ड एज टॉप थिंकर 2020, टॉप थिंकर 2020 इन द वर्ल्ड बाय ब्रिटिश मैगजीन प्रोस्पेक्ट। ब्रिटिश मैगजीन प्रोस्पेक्ट के अनुसार किहड़े इंडियन परसन, विच इंडियन परसन नू टॉप थिंकर 2020 का नामित किया गया? किन्हां नू किया गया है? के शैलजा जो कि केरला दे हैल्थ मिनिस्टर ने के शैलजा। सो याद होएगा रिसेंटली इन्हों का नाम आप पहले भी डिस्कस किया है। इन्होंने यूनाइटेड नेशनस द्वारा ऑनर किया गया सी कोविड-19 के दौरान इन्हों के फैसलों के लिए इन्हों द्वारा शुरू की स्कीमां के लिए। ठीक है, इस सेम कारण के लिए टॉप थिंकर 2020 नामित किया गया है वर्ल्ड ब्रिटिश मैगजीन द्वारा प्रोस्पेक्ट।
के शैलजा नूं। केरला के हैल्थ मिनिस्टर ने, नाम याद रखना है, इंपोर्टेंट रहेगा। इस तो इलावा बाकी ऑप्शंस काफ़ी इंपोर्टेंट ने। सब तो पहले डॉक्टर नीना मल्होत्रा, डॉक्टर नीना मल्होत्रा इन्हों अपॉइंट किया गया एंबेसडर टू इटली, इंडियन एंबेसडर टू इटली अपॉइंट किए गए ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा। इटली कैपिटल रोम है, करेंसी यूरो चलती है। राजकुमार श्रीवास्तव, राजकुमार श्रीवास्तव ਨੂੰ भी अपॉइंट किया गया एंबेसडर टू क्रोएशिया, एंबेसडर टू क्रोएशिया। क्रोएशिया कैपिटल जैगरेब है, करेंसी कूना चलती है। राजकुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने की करया अवार्ड दिते ने जीवन रक्षा मैडल्स। 3 आरपीएफ अगर आप गल करिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ के 3 ऑफिसर्स नूं जीवन रक्षा मैडल्स दिते गए। ठीक है, सब तो पहले लेट जहांगीर सिंह नूं डैथ तो बाद एक कॉन्स्टेबल ने नॉर्दर्न रेलवे दे विच कॉन्स्टेबल ने इन्हां नूं सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक दिता गया, सर्वोत्तम जीवन रक्षा मैडल दिता गया। इस तो इलावा शिवचरण सिंह और मुकेश कुमार मीना, शिवचरण सिंह मुकेश कुमार मीना इन्हां नूं उत्तम जीवन रक्षक अवार्ड दिता गया। सर्वोत्तम और उत्तम, सर्वोत्तम दिता गया जहांगीर सिंह नूं और उत्तम दिता गया शिवचरण सिंह और मुकेश कुमार मीना। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च अ न्यू पब्लिकेशन द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजीज, द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजीज टू इंस्पायर अप टू 200 मिलियन स्टूडेंट्स around the globe to adopt environmentally friendly habits। इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैबिट्स, इन्वायरमेंट दे हित दे विच कुछ आदतां सीखण दे लई द लिटल बुक ऑफ ग्रीन नजीज, इस बुक नूं लॉन्च किया गया, इस बुक नूं लॉन्च किया गया, इस पब्लिकेशन नूं लॉन्च किया गया किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा? अपना आंसर होएगा फर्स्ट ऑप्शन यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इस दे अंडर इसनूं किया गया। अगर आप गल करिए यूएनईपी दी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इस दा हैडकुआटर नायरोबी केनिया दे विच है, नायरोबी केनिया दे विच हैडकुआटर है, याद रखना है। इस तो इलावा अगर आप गल करिए यूएनईपी दी रिसेंटली 2022 तक एंबेसडर अपॉइंट किए गए सी दिया मिर्जा, ये भी याद रखना इंपोर्टेंट है। दिया मिर्जा नूं यूएनईपी का ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया सी। नैक्सट है यूनीसैफ, यूनीसैफ की अगर आप गल करते हैं तो यूनीसैफ का हैडकुआटर कित्थे है? यूनीसैफ का हैडकुआटर है न्यूयॉर्क दे विच, यूनीसैफ का हैडकुआटर कित्थे है? न्यूयॉर्क दे विच। यूनेस्को, यूनेस्को का हैडकुआटर है फ्रांस, पेरिस दे विच, पेरिस फ्रांस दे विच। WHO हैडकुआटर जनेवा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 में बनाया गया सी। हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे ऑबजर्व किया जाता है। विपो, वर्ल्ड इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसका हैडकुआटर भी जनेवा दे विच है। रिसेंटली इस दोबारा आप डिस्कस किया सी, इंडैक्स डिस्कस किया सी, इनोवेशन इंडैक्स, वर्ल्ड इनोवेशन इंडैक्स आप डिस्कस किया सी, विपो द्वारा रिलीज किया गया सी। मेरा क्वेश्चन है कि इस इंडिया का रैंक कितना रहा सी? आप कल या परसों डिस्कस किया सी वर्ल्ड इनोवेशन इंडैक्स, इस इंडिया की रैंकिंग कितनी रही है? कमेंट बॉक्स के आंसर देना है। नेक्स्ट है हू हैज़ अनाउंस्ड दैट इंडिया हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड एज हाई ग्रोथ इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रैसवेज एंड हाईवेज। अगर आप गल करिए रिसेंटली कुछ ईयर्स तो एक्सप्रैसवेज और हाईवेज की कंस्ट्रक्शन में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है, जिस कारण इंडिया वर्ल्ड का सैकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क बन चुका है। इंडिया दे विच वर्ल्ड का सैकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क बन चुका है। तो इसनों अनाउंस किसने किया होएगा? इसनों अनाउंस किया होएगा रोड एंड हाईवेज मिनिस्टर ने। तो रोड एंड हाईवेज मिनिस्टर कौन ने? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर ने, प्लस इन्हां लवे MSME मिनिस्ट्री है। नागपुर महाराष्ट्र तो लोक सभा MP ने, इन्हां द्वारा इस अनाउंसमेंट नूं किया गया। ठीक है जी। अगर आप गल करिए बाकी ऑप्शंस की, तो बाकी ऑप्शंस काफ़ी इंपोर्टेंट न्यूज़ ने बाकी ऑप्शंस के रिलेटेड और डिस्कस करते हैं। सब तो पहले किरण रिजिजू यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने।
ਯੂਥ ਅਫੇਅਰਸ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਈਚਿੰਗ ਬੁਟੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਕੂਲਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ EN ਜੋਗੋ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਕਾफ़ी ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਾਈਚਿੰਗ ਬੁਟੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਈਚਿੰਗ ਬੁਟੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਈਚਿੰਗ ਬੁਟੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਕੂਲਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ EN ਜੋਗੋ ਤਾਂ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਦੁਆਰਾ 5ਵੀਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਡਰ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਰਸ਼ੀਆ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿੰਨਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ? 5ਵੀਂ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। दामो मध्य प्रदेश तो लोक सभा MP ने। नैक्सट है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ने खुंती झारखंड तो लोक सभा MP ने। इन्हों द्वारा एग्रीमेंट साइन किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि आईपा दे नाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दे नाल, ताकि न्यू दिल्ली के कैंपस जिहड़ा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कैंपस है उत्थे एक नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल रिसर्च बनाया जा सके। नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल रिसर्च कित्थे बनाया जाएगा? न्यू दिल्ली दे विच। ठीक है जी। एग्रीमेंट साइन किया गया अर्जुन मुंडा प्लस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दे नाल। नैक्सट है आर के सिंह पावर एंड रीन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर ने। पावर एंड रीन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर ने आरा बिहार तो लोक सभा MP ने। इन्हों द्वारा ग्रीन टर्म अहेड मार्केट टू लेड एंड इंक्रीज इन द पार्टिसिपेंट्स इन द रीन्यूएबल एनर्जी सैक्टर। रीन्यूएबल एनर्जी सैक्टर्स दे विच लोकां दी गिनती वधाउण दे लई ग्रीन टर्म अहेड मार्केट नूं लॉन्च किया गया। ग्रीन टर्म अहेड मार्केट नूं लॉन्च किया गया किन्ना द्वारा? RK सिंह द्वारा। नैक्सट है अ रिपोर्ट लॉन्च बाय वाइस प्रेजिडेंट M वेंकैया नायडू। एक रिपोर्ट लॉन्च की गई वाइस प्रेजिडेंट M वेंकैया नायडू द्वारा एंड रिलीज़ की गई मोबाइल क्रैचिज़। एक रिपोर्ट नूं प्रिपेयर किया गया मोबाइल क्रैचिज़ रिलीज़ की गई और लॉन्च की गई वाइस प्रेजिडेंट M वेंकैया नायडू द्वारा। की रिपोर्ट है? वैल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन की रिपोर्ट रिलीज़ की गई। बेसिकली इस दे विच डिफरेंट मेजर्स किए गए। हैल्थ की गल करिए, न्यूट्रिशन की गल करिए, ग्रोथ की गल करिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की गल करते हैं अगर आप, तो इन्होंने चीज़ों के उत्ते इसनूं किया गया। ये पार्ट है स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड रिपोर्ट का। स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड रिपोर्ट दे विच किसने टॉप किया? केरला ने वैल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन रिपोर्ट दे विच टॉप किया। डायरैक्ट अगर आप वन लाइनर याद करना हो तो केड़ी स्टेट ने वैल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन नूं टॉप किया? केरला द्वारा। किन्ना ने टॉप किया? केरला द्वारा। सैकेंड प्लेस ते गोवा, थर्ड प्लेस त्रिपुरा, फोर्थ प्लेस तमिलनाडु और फिफ्थ प्लेस ते मिजोरम रहे। ठीक है जी। केरला टॉप किया गया, गोवा सैकेंड प्लेस, त्रिपुरा थर्ड प्लेस, तमिलनाडु फोर्थ प्लेस ते और मिजोरम फिफ्थ प्लेस ते। ठीक है जी। सिमिलर तरीके दे नाल जिस तरीके नाल वैल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन है, सिमिलर तरीके नाल एक रिपोर्ट जारी की गई यंग चिल्ड्रन इन्वायरमेंट इंडेक्स। इसी दे नाल यंग चिल्ड्रन एनवायरमेंट इंडेक्स इन्वायरमेंट रिलेटेड जो इंडेक्स जारी किया गया उस दे विच भी केरला ने ही टॉप किया है। सैकेंड प्लेस ते गोवा रहा है, थर्ड प्लेस ते सिक्किम, फोर्थ प्लेस पंजाब अपने लिए इस करके ही इंपोर्टेंट बनती है और फिफ्थ प्लेस ते हिमाचल प्रदेश रहे। ठीक है जी। हुण अगर आप ध्यान नाल की इंपोर्टेंट चीज़ है कि दो रिपोर्ट्स रिलीज़ की गई। वैल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन दे विच किसने टॉप किया? केरला ने। यंग चिल्ड्रन इन्वायरमेंट इंडेक्स दे विच किसने टॉप किया? केरला ने। पंजाब इस इंडेक्स दे विच चौथे नंबर पर रहा है, ये याद रखना है। ठीक है जी। नैक्सट चलते हैं। विद विच कंट्री इंडिया हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट ऑन मैन्युफैक्चरिंग AK-203 राइफल्स। AK-203 राइफल्स
AK-203 ਰਾਈਫਲਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਸ਼ੀਆ ਰਿਲੇਟਡ ਕਾफ़ी ज़्यादा ਨਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਵਕਾਜ਼ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਨੇਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਲੈਦਮੀਰ ਪੁਤਿਨ 2036 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ AK-203 ਰਾਈਫਲਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ SCO ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। SCO ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ SCO ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਸਕੋ ਗਏ ਸੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ SCO ਦੀ ਹੈੱਡ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, SCO ਦੀ ਹੈੱਡ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈਲਡ ਕਰੇਗਾ ਕਦੋਂ? 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਡੇਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ SCO ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਮਿਟ ਹੈਲਡ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ S-300 ਮਿਸਾਈਲਸ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਪਾਈਕ ਮਿਸਾਈਲ ਬੋਰੋ ਕੀਤੀ ਸੀ, LMG ਗਨਸ ਬੋਰੋ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਡਿਫੈਂਸ ਰਿਲੇਟਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਾਦ ਔਰ ਕੈਮਲ ਦੋ ਗਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਫਲਸ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ MP ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੁਆਰਾ G20 ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ G20 ਦੀ, ਤੇ G20 ਦੀ 2020 ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੇ ਕੌਣ ਹੈਲਡ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ। 2021 ਦੇ ਕੌਣ ਹੈਲਡ ਕਰੇਗਾ? ਇਟਲੀ। ਔਰ 2022 ਦੇ ਕੌਣ ਹੈਲਡ ਕਰੇਗਾ? ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ G20 ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 2020 ਦੀ ਕੌਣ ਹੈਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਆਡ ਮੀਟ। ਕੁਆਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ। ਕੁਆਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ, USA। ਇੰਡੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਔਰ USA, ਇਹ 4 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕੁਆਡ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਆਡ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਲੱਸ 2+2 ਡਾਇਲੋਗ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਆਡ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਡ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2+2 ਡਾਇਲੋਗ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ 2+2 ਡਾਇਲੋਗ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਜਾਪਾਨ ਵੀ ਹੈਲਡ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ USA ਪਹਿਲੇ ਹੈਲਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਹੈਲਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ 2+2 ਡਾਇਲੋਗ ਇੰਡੀਆ USA ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੈਲਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਕੁਆਡ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈਲਡ ਕਰੇਗਾ ਇੰਡੀਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟ ਹੈਜ਼ ਸਾਈਨਡ ਅ MOU ਵਿਦ SIDBI, ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ SIDBI ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ MSME ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ? MSME ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ SIDBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੇਰਲਾ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ KK ਸ਼ੈਲਜਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ। ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟੋਏ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲਸਟਰ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਰਸਟ ਟੋਏ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲਸਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਜੌਬਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੁਆਰਾ 7 ਮੈਂਬਰ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, 7 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਟੂ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ,
कैबिनेट द्वारा पास की गई है। हुण हर एक स्टेट दे विच इंप्लीमेंट भी तो करनी है। इंप्लीमेंट करने के लिए तमिलनाडु ने एक कमेटी बनाई, पैनल बनाया जिस दे हैड करनगे स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसीपल सैकटरी, जिसनों हैड किया जाएगा स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसीपल सैकटरी द्वारा। नैक्सट है उड़ीसा। उड़ीसा द्वारा रिवर क्रूजिज स्टार्ट करने की गल की गई, टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए। रिवर क्रूजिज क्रूज तुसीं देखा होगा कि बोट के तरीके नाल हुंदी है, तो उड़ीसा द्वारा अनाउंस किया गया कि उसनों शुरू करनगे ताकि टूरिज्म सैक्टर को बूस्ट किया जा सके। नैक्सट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र रिलेटेड एक न्यूज़ आप डिस्कस कर ली है। दो न्यूज़ होर ने कि टाटा पावर ने टाटा मोटर्स के नाल एग्रीमेंट साइन किया। टाटा पावर ने टाटा मोटर्स के नाल एग्रीमेंट साइन किया है। किस दे लई? इस एग्रीमेंट को साइन किया गया ताकि इंडिया का लार्जेस्ट सोलर कारपोर्ट लगाया जा सके पुणे महाराष्ट्र दे विच, चिकल्ली पुणे महाराष्ट्र दे विच, जिसकी कैपेसिटी होएगी 6.2 मैगावाट। 6.2 मैगावाट। सिमिलर तरीके दे नाल याद रखना है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर ट्री लगाया गया है दुर्गापुर वेस्ट बंगाल दे विच। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल दे विच इसकी कैपेसिटी कितनी सी? 11.5 किलोवाट। 11.5 किलोवाट। अदानी ग्रुप ने की कराया मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिहड़ा मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका 74% स्टेक बाय कर लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 74% स्टेक किसने बाय कर लिया? अदानी ग्रुप ने। अदानी ग्रुप द्वारा ही 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स नूं 50 सालों के लिए लीज पर लिता गया सी। ये भी याद रखना है। जयपुर, त्रिवेंद्रमपुरम और एक मैं हमेशा मेरे माइंड से स्किप करता है, कमेंट बॉक्स में भी दसना है। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ लॉन्च आई रखवाली ऐप। आई रखवाली ऐप टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स टू मेक सिटीजन्स ग्रीनरी सर्वाइवर्स। आई रखवाली ऐप लॉन्च की गई ग्रीनरी सर्वाइवर्स, बेसिकली इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रीनरी सर्वाइवर्स बनाने के लिए सिटीजन्स को आई रखवाली एप्लीकेशन पंजाब गवर्नमेंट द्वारा काफ़ी इंपोर्टेंट न्यूज़ है कि पंजाब गवर्नमेंट द्वारा इसनों डेवलप किया गया, इसनों लॉन्च किया गया। चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह द्वारा इसनों लॉन्च किया गया। बाकी ऑप्शन से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट न्यूज़ ने वो डिस्कस करते हैं। सब तो पहले नागालैंड दे विच की होया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दी है नागालैंड के 2nd मैडिकल कॉलेज के लिए। नागालैंड का पहला मैडिकल कॉलेज कोहिमा दे विच है। कोहिमा नागालैंड की कैपिटल है। पहला मैडिकल कॉलेज हजे अंडर कंस्ट्रक्शन है, चल रहा है, उसनों बनाया जा रहा है। और दूसरा मैडिकल कॉलेज नागालैंड के मोन डिस्ट्रिक्ट के बनाने की अप्रूवल दे दी गई है। ठीक है जी। नैक्सट है असम की गल करिए। असम द्वारा एक स्कीम है उसनों रीलॉन्च किया गया, स्वामी विवेकानंदा असम यूथ एम्पावरमेंट। स्वामी विवेकानंदा असम यूथ एम्पावरमेंट स्कीम। इस स्कीम को दोबारा रीलॉन्च किया गया ताकि सैल्फ इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाई जा सके तकरीबन 2 लाख लोगों को, तकरीबन 2 लाख यूथ लोगों को प्रोवाइड करवाया जा सके सैल्फ एम्प्लॉयमेंट। असम द्वारा ही एक बिल पास किया गया हैरीटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। असम द्वारा हैरीटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बिल पास किया गया। ठीक है जी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केड़ी स्टेट द्वारा बिल पास किया गया हैरीटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए? असम द्वारा। नैक्सट है हरियाणा ने एग्रीमेंट साइन किया, MOU साइन किया M3M फाउंडेशन के नाल। M3M फाउंडेशन के नाल मिलके हरियाणा गवर्नमेंट ने MOU साइन किया किस दे लई? ताकि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लोगों को ऑनलाइन प्रैपरेशन, ट्रेनिंग और मैंटोरिंग प्रोवाइड की जा सके। M3M फाउंडेशन के नाल मिलके हरियाणा गवर्नमेंट ने MOU साइन किया ताकि ऑनलाइन प्रिपरेशन, ट्रेनिंग और मैंटोरिंग प्रोवाइड करवाई जा सके गवर्नमेंट जॉब्स की प्रैपरेशन के लिए। नैक्सट है राजस्थान दे विच इंडिया का फर्स्ट रीजनल वोटर अवेयरनेस सेंटर लगाया जाएगा। बेसिकली इलैक्शन कमीशन द्वारा इसनों अनाउंस किया गया है कि इंडिया का पहला रीजनल वोटर अवेयरनेस सेंटर ये क्यों लगाया जाएगा? ये लगाया जाएगा जयपुर राजस्थान दे विच, जिहड़ा कि कवर करेगा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और MP नूं। 4 स्टेट्स को कवर करेगा। क्यों लगाया जाएगा? कि लोगों के अवेयरनेस फैलाई जा सके कि वोटिंग क्यों करनी चाहिए है, किस तरीके नाल करनी चाहिए है। कुछ लोग ऐसे होंगे ने कि उन्होंने कुछ नहीं पता होंदा, उन्होंने सिर्फ लोग बाहरों दस देंगे ने कि जाके ये बटन दब दो, तो चुपचाप जाके अंदरों बटन दब के आ जाते हैं।
ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੀਜਨਲ ਵੋਟਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਜੈਪੁਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ MP ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਸੈਸ਼ਨ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।